Okay. Good morning, students. And today I am discuss of the first chapter, chemical reaction and chemical equation. Our all syllabus are completed of the first chapter and reduced syllabus according to reduced syllabus. For today, I am again discuss of the main first chapter or PT first, okay, on 16 August. So again, the main topic of the discuss are the first chapter, chemical equation and chemical reaction. Okay, students. Now first topic are completed of the chemical reaction. What is the chemical reaction? The types of the chemical reaction according to nature and according to cause of the types of the chemical reaction. ओके स्टूडेंट्स, नोट्स भी आपकी कंप्लीट हो गई होगी, उसको भी आप लोग देख लीजिएगा एंड सारे टॉपिक्स एक बार फिर से अच्छे से आप लोग रिमाइंड कर लीजिए और नेक्स्ट टाइम आपको जो पीटी फर्स्ट में पीरियोडिक टेस्ट फर्स्ट में आपका आना है, फर्स्ट चैप्टर से आएगा कि कौन कौन सा टॉपिक है वो आप लोग देख लीजिए. ओके. नाउ फर्स्ट टॉपिक है आपका केमिकल रिएक्शन. व्हाट इज द केमिकल रिएक्शन? जनरली सबको मालूम होगा केमिकल रिएक्शन, ठीक है. एनी रिएक्टेंट टू प्रोड्यूस ऑफ द न्यू प्रोडक्ट आर कॉल्ड केमिकल रिएक्शन. फॉर एग्जांपल बहुत है, सारे से एग्जांपल है, जितने भी रिएक्शंस हैं सब केमिकल रिएक्शंस में आते हैं. फिर मेन टॉपिक्स है आपका नंबर 2, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन. टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन. जनरली आपका 5 टाइप्स के केमिकल रिएक्शन है. नंबर 1 है आपका कॉम्बिनेशन. कॉम्बिनेशन रिएक्शन. ओके. नंबर 1 कॉम्बिनेशन है. नंबर 2 डिकम्पोजिशन. डिकम्पोजिशन रिएक्शन. Decomposition further divided in the decomposition further divided in the 3 types: first, second and third. First are completely thermal decomposition reaction. Decomposition reaction further divided in the 3 types. Number first, thermal decomposition reaction. Number second, electrolysis decomposition reaction. Electrolysis decomposition reaction. And last, photo decomposition reaction. Okay, student. Okay. Now reduced syllabus are the same topics of the first chapter, chemical reaction and equation. Now third types of the chemical reaction: simple displacement. Simple displacement reaction. ओके स्टूडेंट्स, किसी भी टॉपिक में प्रॉब्लम्स होगी तो अभी हम इसको फिर से डिस्कस कर लेंगे. कंपोजिशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, सिंपल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड नंबर 4 डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. Okay, double displacement reaction further divided in the 2 types:
Okay, double displacement reaction further divided into two types. प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, जिसको आप प्रेसिपिटेशन या पीपीटी रिएक्शन बोलते हैं। प्रेसिपिटेशन ध्यान रखिएगा, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन या इसको बोल सकते हैं टोटल प्रेसिपिटेशन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, प्रेसिपिटेशन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, या पीपीटी इसको भी शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, पीपीटी प्रेसिपिटेट का शॉर्ट फॉर्म होता है पीपीटी रिएक्शन। ओके, और नंबर सेकंड इसका जो हो जाता है वो ऑलरेडी क्या है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, ये प्रेसिपिटेशन एंड न्यूट्रलाइजेशन होता है। न्यूट्रलाइजेशन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। Okay, parts of the types of chemical reaction and further divided into the decomposition reaction and double displacement reaction. Now last 5 reactions are called redox reaction, in other names oxidation and reduction, oxidation and reduction reaction. Okay, now main chemical reaction are 5 types: combination reaction, decomposition, simple displacement, double displacement, and redox reaction or oxidation reduction reaction. Now next topic are very important: effect of the oxidation or rusting of iron. All students are known as the rusting of iron and formula of the rust. Okay. Now next, rusting of iron topics भी आप पढ़ चुके हैं। Rusting of iron and the main important topic of the first chapter, balancing of chemical reaction या chemical equation। ठीक है, लास्ट टॉपिक है आपका balancing of chemical equation। पीटी फर्स्ट टेस्ट में इतना ही आपका फर्स्ट चैप्टर जो है वो आपका सारे जितने भी है ये टॉपिक्स आपको कंप्लीट होंगे। अब जितने भी आपने बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन और कंपोजिशन, डिकम्पोजिशन, डबल डिस्प्लेसमेंट, सिंपल एंड रिडॉक्स रिएक्शन देखें, आप कोई भी रिएक्शन आप उठाइए और उसको आइडेंटिफाई करिए। ठीक है, कि किसमें कॉम्बिनेशन हुआ है, कॉम्बिनेशन में ऐड होता है, सिंपल सी बात है। अगर अभी मैं रिएक्शंस आपको बताता हूं, यानी आप रिएक्शन देख के आप आइडेंटिफाई कर देंगे कि कौन सा डिकम्पोजिशन है, कौन सिंपल डिस्प्लेसमेंट है, कौन डबल डिस्प्लेसमेंट है। और सिंपल डिस्प्लेसमेंट में एक टॉपिक बोल सकते हैं या उसको आप मेन एक्टिविटी सीरीज ऑफ द मेटल सबसे इंपॉर्टेंट थी, मैंने आपको बताया था एक्टिविटी सीरीज ऑफ द मेटल। उसमें एक्टिविटी जो सीरीज थी वो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो कि आपका सिंपल डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो आपको एक्टिविटी सीरीज नहीं आती तो फिर आपको गड़बड़ हो जाएगा। ऐसा भी पूछा जा सकता है कि मेटल, व्हाट इज द मेटल एक्टिविटी सीरीज, तो आपको बताना पड़ेगा पूरा। और उस सीरीज को आपको जो पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम है ना, इसका एक सिस्टम होता है, उसको आप लर्न कर लीजिएगा। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, Zn, ठीक है, लेड, हाइड्रोजन, फिर हाइड्रोजन के बाद हो जाएगा Au, Ag, लास्ट में आपका Pt हो जाता है। तो इस प्रकार के सारे जो आपके टॉपिक्स हैं उसको आप फर्स्ट चैप्टर के अंतर्गत भी पढ़ेंगे और पीटी फर्स्ट में भी आपका यही सारे आएंगे। इसमें जो भी टॉपिक आपको टफ लग रहा हो इसके बारे में आप डिस्कस भी कर सकते हैं। और हम आइडेंटिफाइंग ये सारे रिएक्शन जानने के बाद, जनरली अगर आपसे पूछा जाए ना तो टाइप्स ऑफ रिएक्शन तो दिखाई दे रहा है 5 टाइप, बट ये 3 और 2 को भी आपको ऐड करना पड़ेगा। तो 5 ये हो गया, 5 ये, यानी 10 रिएक्शन आपको लर्न करने होंगे।
तो 5 तो मेन हो गया, इसका डिवाइडेशन हो गया। इलेक्ट्रोलिसिस, फोटोसिंथेसिस, ये तो बिल्कुल जो सिंपल रिएक्शन है। अगर डिकम्पोजिशन आ गया आपको डिकम्पो, तो अगर थर्मल मतलब हीटिंग पावर के द्वारा, अगर हीट के द्वारा रिएक्शन हो रहा है तो थर्मल हो जाएगा, और करंट के द्वारा रिएक्शन हो रही है तो इलेक्ट्रोलिसिस होगी। सनलाइट की प्रेजेंस में होगी तो फोटो decomposition reaction हो जाएगी। सिंपल डिस्प्लेसमेंट्स आर डिपेंड्स अपॉन द एक्टिविटी सीरीज ऑफ द मेटल। इसमें जो एक्टिव मेटल होगा अपने रिएक्टिव मेटल्स को क्या करेगा, डिस्प्लेस कर देगा, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाएगा। डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, डबल डिस्प्लेसमेंट में जैसे दो रिएक्टेंट होते हैं, दोनों रिएक्टेंट में क्या होगा, इसका और इसका दोनों का ये क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, यानी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, तो आप देखेंगे उसमें भी अगर Zn है तो Cu में चेंज हो जाता है, Cu है तो Zn में चेंज हो जाता है। नेक्स्ट आपका जो रिएक्शन होता है वो आपका रेडॉक्स रिएक्शन है, जो इंपॉर्टेंट है इसको भी हमने आप बता दिया है। दो मेथड से, एक ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन से, और दूसरा आपको इलेक्ट्रॉन कॉन्सेप्ट से। टोटल आपका डिपेंड इलेक्ट्रॉन कॉन्सेप्ट आपका रेडॉक्स रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन एंड reduction reaction. Losses of the electron and gain of the electron depend upon the redox reaction. And old theory of the redox reaction, only reduction are called add of the hydrogen and remove of the oxygen. So another word of the oxygen of the add and remove of the hydrogen. But new modern concept of the depends upon the electron concept. Electron concepts are certified in according to modern concept oxidation process in which the atom or lose one or more electron. ठीक है, losses of the electron is called the oxidation, gain of electron called the reduction, और both are reaction are completed, it is called the redox reaction. Effect of the oxidation in everyday of the life. Number one, rusting of iron, and another corrosions of the metal. Corrosions of the metal. Okay, ये दो टॉपिक्स उसमें के हैं जो शॉर्ट नोट्स में क्रिएटिविटी कर देंगे, आपके शॉर्ट नोट्स में आ सकते हैं। फिर लास्ट टॉपिक, इसका रिएक्शन भी आपसे पूछा जा सकता है, रस्टिंग ऑफ आयरन। मैंने आपको इसको रिएक्शन लिखाया है कि आयरन और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन कैसे इंक्लूड होते हैं और रस्ट फॉर्म करते हैं, या फिर 2O3 देख लीजिएगा, फेरिक ऑक्साइड बनाएंगे। अब बचता है आपका लास्ट टॉपिक, बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन। बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन में आपका बहुत से सारे रिएक्शंस हैं। टू मेथड मैंने बताया, एक 5 स्टेप्स है, 5 स्टेप्स में आपको स्टेप बाय स्टेप्स कर देना है। फर्स्ट स्टेप्स में आप लेफ्ट हैंड साइड रिएक्शन एंड राइट हैंड साइड रिएक्शंस के टोटल एलिमेंट्स काउंट करके आप रख लेते हैं। सेकेंड स्टेप्स में आप देखते हैं कि जो सबसे कम एलिमेंट्स है उसको दोनों तरफ हम इक्वल करते हैं। ठीक है, थर्ड स्टेप्स में हम देख लेते हैं कि दोनों में से जो भी ऑक्सीजन जिसमें प्रेजेंस है ऑक्सीजन से बैलेंस कर लेते हैं। फिर उसी तरह स्टेप्स आप चार्ट एक बनाते हैं, उस चार्ट में लेफ्ट हैंड साइड का और राइट हैंड साइड का दोनों एलिमेंट्स इक्वल लिख देते हैं, जिसमें जो कम रहता है उसको ऐड कर देते हैं, और नेक्स्ट में आप रिएक्शन लिख लेते हैं। उस रिएक्शन में बहुत प्रॉब्लम्स कभी कभी आ जाती है, ऐसी रिएक्शन हो जाती है जिसमें ऑक्सीडेशन वाली प्रोसेस होती है, उसमें 5 ऑक्सीजन, 7 ऑक्सीजन या 11 ऑक्सीजन इस तरह के ऐसे रिएक्टेंट आ जाते हैं जिसकी वजह से वो प्रॉब्लम हो जाती है। सो आपको लास्ट में हमने बैलेंसिंग रिएक्शंस का सबसे अच्छा तरीका बताया था। मेटल, नॉन मेटल, फर्स्टली आर द मेटल बैलेंस, फिर नॉन मेटल बैलेंस, फिर ऑक्सीजन बैलेंस, देन हाइड्रोजन बैलेंस। ये प्रीवियस लेक्चर में आपको बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लिया था। कई क्वेश्चंस मैंने उसमें आपको दे दिए थे, उस क्वेश्चन में आपने शायद निकाल भी लिया हो, कैसे कंपोनेंट्स निकालते हैं, कैसे ऑक्सीडेशन होता है, और सॉरी कैसे ऑक्सीजन बैलेंस करते हैं। फर्दर हम फिर मेटल बैलेंस करेंगे, नॉन मेटल बैलेंस करेंगे। ओके, हाँ, यस, आपका जो रिएक्शन लिख के फॉरवर्ड कर रहे हैं सही है। रस्टिंग ऑफ आयरन का बैलेंसिंग रिएक्शन आपको प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है बेटा, वो सारा आप प्रैक्टिस करेंगे तभी आपका कंप्लीट होगा। ओके, सारे आप टॉपिक्स को फिर से एक बार अच्छे से क्लियर करके देख लीजिएगा।
और कुछ केमिकल रिएक्शन आपको मैं फिर से बता रहा हूँ जो इम्पोर्टेंट है। आपको मैंने सिंपल एक रिएक्शन दिया था, मीथेन react with oxygen produce of the carbon dioxide and water। इसके साथ हीट एंड एनर्जी भी निकलती है, हीट एंड एनर्जी। तो सिंपल इक्वेशन थी, आपको मैंने बताया था पहले मेटल मेटल नहीं है तो नॉन मेटल, इसमें क्या है ये देखिए मेटल है ना, नॉन मेटल है, इधर कार्बन नॉन मेटल है, इधर कार्बन मेटल है ही नहीं, इधर वन कार्बन है, इधर वन कार्बन है, इट इज बैलेंस। इन ऑक्सीजन इधर टू ऑक्सीजन है, इधर थ्री ऑक्सीजन है। ओके, देखिए ध्यान से, इधर टू ऑक्सीजन है, इधर थ्री ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन को हम बैलेंस करेंगे। कैसे बैलेंस करेंगे, आप इधर थ्री है इधर टू है, यहाँ पर हम टू कर देंगे तो अब ये थ्री ये फोर हो गया और यहाँ पर थ्री हो गया। इसको कंप्लीट करने के लिए अगर हम यहाँ पे ट्वाइस कर देते हैं तो ऑक्सीजन आपको कंप्लीट हो जाता है। अब बचता है आपका हाइड्रोजन। हाइड्रोजन आप देख लीजिए, हाइड्रोजन यहाँ भी फोर है और यहाँ भी फोर है। अब देखिए कार्बन वन वन, ऑक्सीजन टू फोर, ऑक्सीजन टू टू फोर और हाइड्रोजन फोर। बैलेंस एकदम सिंपल इक्वेशन है, ये भी आपकी बैलेंस हो गई। सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन जो मैंने आपको दिया था इसी में का दूसरा, एथेन CH6 प्लस रिएक्ट विद द ऑक्सीजन फॉर्म ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर जनरली इसका मैं आपको बता दिया था सिंपल तरीके से, बट अगर आप नहीं कर पाए हैं तो आप कर लीजिएगा। थ्री प्रोसेस ले जाएंगे, थ्री प्रोसेस के बाद यहाँ पर ये ट्वाइस हो जाएगा बहुत अच्छे से, ये सेवन हो जाएगा, ये फोर हो जाएगा, वही प्रोसेस पूरी ले जाएंगे, मेटल नॉन मेटल एंड ठीक है, एंड मेटल नॉन मेटल ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन फाइव, कम से कम फाइव स्टेप में ले जाएंगे तो आपका ये बैलेंस हो जाएगा। बैलेंस होने के बाद ये रिएक्शन आएंगी, ठीक है, मैं तरीका आपको बता दिया हूँ, आप बैलेंस कर लीजिएगा, आप फिर लर्न कर लीजिए। देखिए इसमें मेटल है नहीं, यहाँ पर कार्बन कितना है फोर, इधर भी देख लीजिए कार्बन कितना है फोर, मेटल के बाद ऑलरेडी ऑक्सीजन है सेवन इंटू टू यानी 14 ऑक्सीजन, और इधर सिक्स, सिक्स इंटू फोर इंटू टू इज इक्वल टू एट, एट प्लस सिक्स इक्वल टू 14 ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन की बैलेंस है, ठीक है। और लास्ट में बचता है आपका हाइड्रोजन। हाइड्रोजन आप भी काउंट कर लीजिए, सिक्स इंटू टू 12 हाइड्रोजन लेफ्ट साइड एंड सिक्स इंटू ट्वेल्व हाइड्रोजन इज राइट साइड। तो आई होप आप लोग ये रिएक्शन कल कर लिए होंगे और बैलेंस आ गया होगा। ओके, यस, पीटी फर्स्ट में ओनली एमसीक्यू क्वेश्चंस आएंगे। 10 क्वेश्चन केमिस्ट्री के होंगे, 10 बायोलॉजी के और 10 क्वेश्चन फिजिक्स के आपके होंगे। ठीक है, जनरली कुछ क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, उस क्वेश्चंस को आप लोग बैलेंस कर लीजिएगा। बेरियम क्लोराइड नेम सबका आप जान लीजिएगा। बेरियम क्लोराइड रिएक्ट विथ सल्फ्यूरिक एसिड, ओके, बेरियम क्लोराइड reacts with sulfuric acid and form of the barium sulfate, barium sulfate and hydrogen chloride HCl। ओके, नेम आपका देखिए, देखिए इसमें दो चीजें भी आपको देखना है। एक चीज तो ये देखना है कि हमको बैलेंस करना है, और दूसरी चीज देखना है कि इसमें से कौन सा रिएक्शन है। जितने भी रिएक्शंस आप में है, रिएक्शंस में आप देख लेंगे इसमें कौन सा रिएक्शन है, कौन सा रिएक्शन। जैसे देखिए सबसे पहले हम इसको आइडेंटिफाई करें कौन सा रिएक्शन है। देखिए यहाँ पर बेरियम है, यहाँ पर हाइड्रोजन है, यहाँ पर क्या हुआ है बेटा, ध्यान से देखिए, डबल डिस्प्लेसमेंट, गुड, यानी यही डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। ओके, डबल डिस्प्लेसमेंट्स में जनरली ये प्रेसिपिटेट बनाता है, तो इसलिए इट इज कॉल्ड द प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। ये प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी है, डबल डिस्प्लेसमेंट। अब बैलेंस कर लेंगे, वो तो आपके ऊपर है, बैलेंस कर लीजिएगा, आ जाएगा आपको।
कोई बात नहीं, वो लोग अपना अपने हिसाब से समझ लीजिएगा। नेक्स्ट, आयरन सल्फाइड, iron sulfide, iron sulfide react with oxygen to give ferric oxide, okay, to give ferric oxide and sulfur dioxide. ये अभी आपका नेक्स्ट चैप्टर जब आएगा प्रिपरेशन ऑफ द सल्फर डाइऑक्साइड, तो वहां की प्रिपरेशन होगी। सबसे पहले आप देख लीजिए, आइडेंटिफाई कर लीजिए कौन सा रिएक्शन है। ओके, पहले आइडेंटिफाई कर लीजिए कौन सा रिएक्शन है, उसके बाद बैलेंस कर लीजिएगा। अब देखिए ऑक्सीजन इसमें ऐड हो रहा है कि रिमूव हो रहा है, तो आपको पता चल जाएगा कि ऑक्सीडेशन है कि रिडक्शन है कि रिडॉक्स है। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, थोड़ा टफ है, कई स्टेप करेंगे तो ये कंप्लीट होगी। एक बार अच्छे से देख लीजिएगा, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी। करके देख लीजिए कि इसमें टाइम लगेगा, जर्नल तुरंत नहीं हो जाएगी। पहले मेटल, फिर नॉन मेटल, फिर ऑक्सीजन, हाइड्रोजन है ही नहीं है, पहले मेटल, फिर नॉन मेटल, फिर ऑक्सीजन। फर्दर जैसे आप इंक्लूड करते चले जाएंगे, बहुत अच्छे से करिएगा, ये आपको आ जाएगा। टाइम लगेगा थोड़ा सा, बहुत आसानी से नहीं आएगी, सिंपल रिएक्शन नहीं है। जब भी किसी में ऑक्सीडेशन या रिडक्शन रिएक्शन आएगी, समझ लीजिए वो टफ है। और ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए आपको कई स्टेप जाना पड़ेगा, क्योंकि जैसे ऑक्सीजन बैलेंस होगा वैसे भी आपका मेटल भी इनबैलेंस हो जाएगा, फिर नॉन मेटल इनबैलेंस हो जाएगा। तो कई बार उसको कई स्टेप्स में करेंगे तब आएगा। दो रिएक्शंस मैं दे रहा हूं, दोनों रिएक्शंस को आप कर लीजिएगा। सल्फर रिएक्ट विथ नाइट्रिक एसिड, sulfur react with nitric acid to produce sulfuric acid, nitrogen dioxide and water। ठीक है, सल्फर रिएक्ट करता है नाइट्रिक एसिड से, आपका सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 एंड NO2 प्लस H2O, ये दोनों को आप बैलेंस करिएगा। और आइडेंटिफाई करिएगा। देखिए सल्फर भी क्या है, ऑक्सीजन फैमिली का है, तो पॉजिटिव एलिमेंट्स ऐड, ठीक है। रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन की तो आपको दोनों डिफिनेशन आप याद करा करिए। ये कोई एलिमेंट्स होते हैं, ये भी एलिमेंट्स। देखिए अगर इसमें ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, ऑक्सीजन ऐड हो रहा है और हाइड्रोजन रिमूव हो रही है, इट इज कॉल्ड द ऑक्सीडेशन। दूसरी प्रोसेस क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट्स ऐड और इलेक्ट्रोपॉजिटिव पार्ट रिमूव। Electronegative part or electropositive part add and electronegative add and electropositive remove, it is called the oxidation। ठीक है, ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन। जस्ट अपोजिट reduction, when any elements add of the hydrogen and remove of the oxygen, and another word, add of the electropositive atom and remove of the electronegative atom, it is called the reduction। मॉडर्न कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड यूजेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, फर्स्ट चैप्टर आपका यहीं से एंड होता है बेटा, और नेक्स्ट लेक्चर में हम सेकेंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे। सेकेंड चैप्टर और फर्स्ट चैप्टर के जितने भी टॉपिक्स हैं अच्छे से आप लर्न कर लीजिए। जितने भी स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं, मुझे लग रहा है कि आपको ये सारे टॉपिक समझ में आ गए होंगे, ठीक है। बट ये केमिस्ट्री है बेटा, केमिस्ट्री को जब तक आप कई बार लर्न करके और प्रैक्टिस नहीं करोगे तो रिएक्शन आपको समझ में नहीं आएंगे। क्योंकि सारे बहुत से बच्चे मैसेज करते सर रिएक्शन समझ में नहीं आ रहा,
पहले बेटा 9th क्लास वाला जो भी है टॉपिक्स आप उसको पूरा कंप्लीट कर लेंगे। जैसे एलिमेंट्स, कंपाउंड, मॉलिक्यूल्स, एटम, ये सब कंप्लीट हो जाएगा तो रिएक्शन धीरे धीरे आपको आना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे आप ये जान नहीं पाते ना कि ये रिएक्शन में ये कैसे प्रोडक्ट बना, ये आप जब धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे तभी हम जान पाएंगे कि इसके साथ क्या मिलके क्या बनता है, कैसे ये मिलते हैं, कैसे बनते हैं। एक दिन में नहीं आएगा, ये प्रैक्टिस पर आएगा। और कुछ ऐसे रिएक्शंस होते हैं जो बिल्कुल कंफर्म है कि वही बनना ही बनना है। ठीक है, तो ये सब आपको एक बार नहीं कम से कम 50 बार लगाओगे तभी आपका बेटा आएगा इसमें। ओके, अब प्रीटी फर्स्ट की आप लोग तैयारी करिए, फर्स्ट चैप्टर अच्छे से पढ़ लीजिएगा। आई होप केमिस्ट्री फर्स्ट चैप्टर आपको सब लोगों को बहुत अच्छे समझ में आ गया था, जो लोग इसमें जुड़े हुए हैं। ठीक है, सारे रिएक्शन एक बार कोई भी रिएक्शन देखिए, पेज केमिस्ट्री का कोई भी पेज आप पलटिए, उसमें कोई भी रिएक्शन हो, आप उसमें ये ढूंढिए कि इसमें से कौन सा टाइप से रिएक्शन है। एडिशन हुआ है, सॉरी कॉम्बिनेशन हुआ है, कि सिंपल डिस्प्लेसमेंट है, डबल डिस्प्लेसमेंट है, ऑक्सीडेशन है, सिंपल है, कौन सा है, प्रेसिपिटेशन है, न्यूट्रलाइजेशन है, फोटोसिंथेसिस है, इलेक्ट्रोसिंथेसिस है, थर्मल है। तो वो आपको किसी भी रिएक्शन में अगर आइडेंटिफाई करना सीख लेंगे तो पहले हम आइडेंटिफाई कर लेंगे रिएक्शंस को, उसके बाद रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट को आपको धीरे धीरे लर्न हो जाएगा। ये रिएक्टेंट से ये प्रोडक्ट बन रहा है, ये रिएक्टेंट से ये प्रोडक्ट बन रहा है। ये बिल्कुल जब आप प्रैक्टिकल भी आकर लैब में करेंगे तब भी आपको ये सारी चीजें समझ में आ जाएगी। ओके, ओके स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट lecture are attend Wednesday and Thursday, second chapter acid, base and salt. Welcome, welcome beta, have a nice day.